مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے جی پیش خدمت ہے کوئز کمپٹیشن یعنی معلومات ہی معلومات. جی حسب روایت 3 کنٹیسٹنٹ اے، کنٹیسٹنٹ بی، کنٹیسٹنٹ سی ہمارے ساتھ ہیں اور آج بھی 3 راؤنڈز یعنی بزر راؤنڈ، ویژول راؤنڈ اور ریپڈ فائر راؤنڈ ہوں گے. بزر راؤنڈ میں صحیح جواب دینے پر ملیں گے 10 نمبر، غلط جواب دینے پر ملیں گے -10 اور یعنی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. تو سوال کو پورے انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا ہے. اگر سوال وہی ہوا جو آپ سوچ رہے تھے تو آپ کو 10 نمبر ملیں گے. اگر سوال آپ نے ادھورا سنا اور یہ بتا نہ سکے کہ سوال کیا تھا تو آپ کو ملیں گے -10. تو آپ کی مرضی -10 لیجئے یا +10 لیجئے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تینوں تیار ہیں؟ اپنی اپنی بزر چیک کرائیں. بالکل ٹھیک ہے. کنٹیسٹنٹ اے یعنی زین العابدین فیڈرل اردو یونیورسٹی، میری یونیورسٹی. کنٹیسٹنٹ بی محمد ناصر جامعۃ الرشید، ماشاءاللہ. کنٹیسٹنٹ سی محمد دانیال NED یونیورسٹی. آپ تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں. لیٹس سی واٹ وڈ ہیپن. آپ کی پوٹینشل چاہیے، حاضر دماغی چاہیے، پورا کانفیڈنس، ٹیمپرامنٹ کہیں لوز نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی جیت بھی رہا ہے تو بازی پلٹ سکتی ہے. ریپڈ فائر راؤنڈ، ویژول راؤنڈ، آپ کی قسمت کا پلڑا یکسر بدل سکتا ہے، تو اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بی کانفیڈنٹ اور آگے کی تیاری کریں. 3 شاہکار شخصیات اپنے اپنے شعبے کی روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، الحاج محمد عامر فیاضی صدیقی صاحب. تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اور بزر راؤنڈ کا آغاز یقیناً آپ تینوں سے ہی ہوتا ہے. تو قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کر رہے ہیں بزر راؤنڈ کا آغاز. پہلا سوال جی. رب زدنی علما، یہ کون ایک کیا سوال ہے میرا؟ سوال رب زدنی علما کون سی صورت میں؟ سورۃ طٰہٰ میں. سورۃ طٰہٰ، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، بالکل صحیح. درست جواب. 10 نمبر کنٹیسٹنٹ اے نے آتے ہی لے لیے ہیں. اور دوسرا سوال مفتی محمد سہیل رضا امجدی. ملکہ بلقیس کا جو تخت لانے والے تھے تو ان کا ذکر کس پارے میں ہے؟ یہ 19ویں سپارے میں، سورۃ النمل میں. درست جواب. کنٹیسٹنٹ اے 10 نمبر اور آپ کے حصے میں اور 20 نمبر، جبکہ جامعۃ الرشید کے طالب علم کو ان کا دونوں کا جواب دینا چاہیے تھا، لیکن جواب کنٹیسٹنٹ اے دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹیسٹنٹ اے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جیتتا ہوا جو کنٹیسٹنٹ ہوتا ہے تقریباً بازی جیتا ہوا وہ بھی بعض اوقات پیچھے آ جاتا ہے ریپڈ فائر یا غلطیوں کی وجہ سے. الحاج محمد عامر فیاضی صدیقی صاحب کریں گے سوال. نبی کریم علیہ السلام قبیلہ قریش کی کس شاخ سے تعلق رکھتے تھے؟ جی کس نے بجایا؟ اے کنٹیسٹنٹ اے بنو ہاشم سے. درست جواب. قبیلہ بنو ہاشم سے تھا آپ کا تعلق. بتاتا چلوں کہ آپ میں سے جو بھی سیلیکٹ ہوگا وہ کوالیفائی کرے گا کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے، اور کوارٹر فائنل راؤنڈ سے اگر وہ سیمی فائنل تک پہنچ گیا اور سیمی فائنل سے گرینڈ فنالے یعنی فائنل راؤنڈ تک پہنچ گیا تو فائنل راؤنڈ میں ان کے لیے کیش پرائزز ہیں. جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے، اسٹار مارکیٹنگ کی طرف سے، GFS بلڈرز، عابد گارمنٹس، پیزا پوائنٹ اور فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں. یہ گفٹ ہیمپرز تو آج بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. تینوں کنٹیسٹنٹس تیار ہیں. 3 سوال ہوئے اور تینوں کا جواب دیا. اللہ اکبر. کنٹیسٹنٹ اے نے چلیں بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا کہ جو صحابہ کرام کی جماعت میں بہت سینئر صحابی کیونکہ حضور کے چچا اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے. کنٹیسٹنٹ اے حضرت عباس. درست جواب. 10 نمبر. یہ میں نے اپنی جانب سے سوال کیا تھا اور 10 نمبر کیونکہ حضرت آپ تینوں کرتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے ایک سوال آپ لوگوں کی اتباع میں بھی کروں. 10 نمبر کنٹیسٹنٹ اے نے حاصل کر لیے. ٹھیک ہے. شاہ جہانی مسجد. جی کیا سوال ہے میرا؟ سی شاہ جہانی مسجد کہاں واقع ہے؟ جی یہی سوال ہے اتفاق سے. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. 14 اگست 1947 کو ریڈیو سے آزادی. جی کنٹیسٹنٹ اے حامد نام تھا، انہوں نے ریڈیو سے وہ کیا. بالکل غلط جواب. -10 بلا وجہ آپ کے پلڑے میں آ گئے. آپ سن لیتے پورا سوال. ریڈیو سے سورۃ الفتح اس نے وہ. اچھا درست جواب. ٹھیک ہے دے دیا جواب. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اگر سوال غلط کر کے آپ نے ٹھیک کر لیا بزر میں سوال بھی بتا دیا تو آپ کو 10 نمبر ملیں گے. ایگزیکٹلی یہ رول ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر کا نام. کنٹیسٹنٹ اے حفیظ جالندری. درست جواب. قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی سورتیں پیغمبروں کے نام؟ کنٹیسٹنٹ اے 6. درست جواب. مدنی سورتوں کی
जी मदनी सूरतों की तादाद नहीं, सी 27 मदनी सूरतों की आपने फरमाया तादाद, तादाद जवाब गलत दे रहे हैं आप। 26 और 27 दोनों, आप- एक रिवायत में 27 है और एक रिवायत में 26 है, दोनों है। अच्छा, एक बात है आपस की कि यहाँ सिलसिला रिवायत का नहीं है, लेकिन इनका जवाब करीब तर है। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? रिवायत करीब तर दोनों है, जवाब मैं दुरुस्त कंसीडर किया जाएगा 27, क्योंकि 27 और 28 की बात होती है। बिल्कुल ठीक है, 10 नंबर कंटेस्टेंट सी को दिए जाएंगे। किस सूरत को कुरान का, जी आप क्या सवाल है? बी, किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? बिल्कुल यही सवाल सूरह है, यासीन। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। किस पैगंबर की वालिदा के नाम पर, कंटेस्टेंट बी, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम, उसके नाम पे एक सूरत आई है। बिल्कुल यही सवाल था और यही जवाब। 10 नंबर आपके हुए। मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा ए, लाहौर में। दुरुस्त जवाब। शाहनामा इस्लाम के शायर बी, जालंधरी, हफीज जालंधरी। दुरुस्त जवाब। मद्दो जजरे इस्लाम के शायर, जी अल्ताफ हुसैन अली। किसने पहले? दोनों ने 7 बजे 7 बजाई थी, सवाल तब्दील कर देते दोनों ने, 7 बजे सवाल तब्दील कर देते। अच्छा जी बताइए, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। एक का नाम हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, बाकी 3 के नाम बताइए। कंटेस्टेंट सी हजरत ए बी और एक साथ और सी बी। बी ने बजाया। मेरा बी का ले लें। अच्छा बी, बी हज़रत फातिमा, हज़रत ज़ैनब और हज़रत रुक़ैया और हज़रत कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। चलिए जी आते हैं विजुअल राउंड की तरफ। जनाब इस्माइल जलाली साहब, अच्छा ये मेरा आज में कैमरा इधर रख, अच्छा ठीक है। आइए बताइए कंटेस्टेंट, ये सवाल सिर्फ आपके लिए, जवाब भी सिर्फ आप देंगे। ये कब्रिस्तान है, आसार कदीमा में इसका शुमार होता है, सूबा सिंध में वाक़े, और इस कब्रिस्तान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मकली। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। मकली का कब्रिस्तान ठट्टा में वाक़े है। और दूसरा विजुअल, ये कदीम इमारत, जी बताइए, इसके नाम में बिल्डिंग आता है और हमारे इदारे, जिस तरह हमारे इदारे हैं ना, के इलेक्ट्रिक है, डीएमसी, डीएमसी करीब है, आप करीब है बहुत। वही ये केएमसी वालों का। दुरुस्त, दुरुस्त। डीएमसी वैसे उन्हीं का है, अंडर आता है, लेकिन इस बिल्डिंग को क्या कहा जाता है? केएमसी। केएमसी बिल्डिंग। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। अगला विजुअल कंटेस्टेंट सी आपके लिए, बताइए इस मकाम को क्या कहा जाता है? जमरात पत्थर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। पत्थर मारे जाते हैं शैतान को, जमरात का मकाम है। बहुत सारे मकामात हमारे विजुअल में, रुकने यमानी और मुज़दलिफा, मिना आते रहे और आज जमरात आया बिल इत्तेफाक, जबकि यह कैद है। बहरहाल पत्थर मारने वाली शबी है और मकाम तो है ही और हज का हिस्सा भी है। बताइए, ये एक मज़ार है जो हर जुमेरात यानी शब जुमा मगरिब के बाद तकरीबन बंद हो जाता है, पानी से अपनी लपेट में ले लेता है इसके रास्ते को, और ये अगले रोज़ खुल जाता है। मेरी और आमिर फैयाजी साहब की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इस मज़ार पे हमारी हाज़िरी हो सके। ये वो मज़ार है जो हिंदुस्तान के मशहूर तरीन शहर बॉम्बे में वाक़ है, और ये पानी वाले बाबा भी वहाँ कुछ लोग इन्हें कहा करते हैं, लेकिन ये बड़ा मुख्तसर सा नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है, और ये मज़ार बॉम्बे का मशहूर तरीन मज़ार है। इनके नाम पर एक मनक़बत भी पढ़ी गई है हिंदुस्तान में और बहुत ज़्यादा सुनी गई है, तुम समंदर के धनी, और उसके बाद आता है इनका नाम, सुनो हम गरीबों की इल्तिजा हम पर करम कर दो। बताइए कंटेस्टेंट ए, ये सवाल आप ही का है। पिया भी आता है इनके नाम में, पिया, पिया। पिया बताइए, बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, बहुत। अच्छा चलें, इनका पहला फर्स्ट नेम पिया, लास्ट नेम अली, सिर्फ सर नेम बता दें मैं 10 नंबर दे दूंगा। बताइए। पयाम अली तो नहीं? नहीं, पिया, पिया अलग है, अली अलग है। हाजी भी कहलाते हैं, हाजी भी कहलाते हैं। बताइए। पिया हाजी अली। ये तो पूरा जवाब हो गया ना मेरे को, इस तरह 10 नंबर देना धांधली हो जाएगा। मैंने पिया भी बोला, अली भी बोला, आपने हाजी बोल दिया, ये गलत हो जाएगा, 12 नंबर नहीं मिलेंगे। कंटेस्टेंट बी, अगला विजुअल आपके लिए, बताइए बताइए। ये गंदम का खोश है।
वाह भाई, आपने देखा है वैसे ही है? हमारे गांव है शांगला सवात। क्या बात है, ये तो शांगला सवात का बच्चा है भाई। मुफ्ती साहब, इसको तो ये फसल भी पता है। क्या बात। अच्छा, कोई और बच्चा होता उसके लिए मुश्किल होती, लेकिन चूंकि हमारा गांव है शांगला सवात। वाह भाई वाह, क्या बात जी। दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी कहा जाता है, बुर्ज खलीफा। बुलंदतरीन इमारत बुर्ज खलीफा। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। आइए जी, रैपिड फायर राउंड कंटेस्टेंट ए बी सी तीनों के लिए, और कंटेस्टेंट ए का जो रैपिड फायर है, जी जी ठीक है, कंटेस्टेंट ए का रैपिड फायर है इस वक्त मेरे हाथ में जी। तैयार हैं आप? टाइमर लगवाएं जी। बिस्मिल्लाह। जुल बजावैन यानी दो चादरों वाला किस सहाबी का लक़ब है? किस सहाबी ने सबसे पहले कुफार के सामने अलल ऐलान कुरान की तिलावत की? हजरत अबू जर। गलत जवाब। मुअल्लिमुल उम्मा, फकीहुल उम्मा, खजीनतुल इल्म किस सहाबी के अलक़ाबात है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। दुरुस्त जवाब। महबूब रसूल किस सहाबी को कहते हैं? हजरत उसामा। दुरुस्त जवाब। कुरान की कौन सी सूरत चांद के नाम पर है? सूरतुल कमर। दुरुस्त जवाब। गज़वातुन नबी में कौन से गज़वा के नाम पर कुरान की सूरत है? सूरत बदर। गज़वा कुरान की कौन सी सूरत सूरज के नाम पर है? सूरतुल शम्स। दुरुस्त जवाब। गज़वा जो था अहज़ाब था, और बड़ा आसान सवाल था मेरा ख्याल। चलें, कंटेस्टेंट भी आप तैयार हैं? जामिद रशीद शांगला सवात से आइए, बिस्मिल्लाह। वो कौन सी सहाबी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन और तकिया उठाया करते थे? हजरत अब्दुल्ला। दुरुस्त जवाब। अब्दुल्ला बिन मसूद पूरा बोला करें। बरोज़े क़यामत की सहाबी को इमामुल उलमा कहा जाएगा? हजरत मुआज़ बिन जबल। दुरुस्त जवाब। नबी करीम ने किस सहाबी को सफीना कश्ती का लक़ब दिया? अबू अब्दुर्रहमान। दुरुस्त जवाब। हम शक्ल हजरत ईसा कौन से सहाबी हैं? उरवा बिन मसूद। दुरुस्त जवाब। राह खुदा में सबसे पहले शहीद होने वाली सहाबिया का नाम बताइए? सुमैया रज़ियल्लाहु दुरुस्त अन्हा। जवाब। किस सहाबी ने हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद किया? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। राजदार रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? अबू हुज़ैफा बिन यमान दुरुस्त रज़ियल्लाहु जवाब। रैपिड फायर बहुत अच्छा खेला कंटेस्टेंट बी ने, लेकिन बजर बहुत अच्छा खेला कंटेस्टेंट ए ने। तो अब स्कोरिंग हो रही है, क्या होता है देखेंगे जी। आप तैयार हैं? जी। बिस्मिल्लाह। किस कौम पर आंधी का अजाब आया? हजरत लूत। कौम बताइए। कौम लूत। गलत जवाब। किस नबी को कुरान में इमामुन नास कहा गया? इमामुन नास। बैतुल मक़दस किस खलीफा राशिद हज़रत के उमर। ज़माने? दुरुस्त जवाब। जुलजनाहैन किस सहाबी का लक़ब है? जुलजनाहैन। हजरत जाफर। दुरुस्त जवाब। नजाशी के दरबार में किस सहाबी ने सूरह मरियम की हज़रत जाफर तिलावत? तैयार। दुरुस्त जवाब। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए? हजरत इसहाक। दुरुस्त जवाब। इसराइल किस नबी का लक़ब है? हजरत बता दीजिए। हजरत याकूब। जी दुरुस्त जवाब है, लेकिन इतना क्यों लड़खड़ा रही है जुबान आपकी? कितने बहुत ज्यादा जवाब इनको आ रहा है, लेकिन इनकी जबान लड़खड़ा रही है। लेकिन कारी साहब चूंकि सवाल में कर चुका था, बजर बच गई, और मैं ऐसा हमेशा करता हूं, किसी की फेवर में नहीं या अगेंस्ट नहीं। हो जाता है एक सवाल तो चले उसका जवाब ले ले तो कोई हर्ज नहीं है। दुरुस्त जवाब दिया इन्होंने आखिरी भी। कंटेस्टेंट ए बी सी के दरमियान था आज क्विज कंपटीशन, और ए ने बजर बहुत अच्छा खेला, बी ने रैपिड बहुत अच्छा खेला, और सी ने 100 खेला सारा। यानी बजर में भी कहीं ना कहीं आप अच्छे थे, और विजुअल तो आपने खेला ही, और सी में भी यानी रैपिड फायर में भी आप अच्छा खेल गए। बहरहाल अगर ये फाइनलिस्ट इनमें से कोई बन गया तो सुहेल शम साहब की जानिब से कैश प्राइज है, स्टार मार्केटिंग की तरफ से कैश प्राइजेस हैं, और टाई का मामला था। जीएफएस बिल्डर्स अच्छा हो गया है, जीएफएस बिल्डर्स और पिज्जा पॉइंट फूड बस्ती आबिद गारमेंट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जो आपकी तरफ से जाएंगे वो आपके साथ जाएंगे। और हो चुकी है नाजरीन टाई, टाई हो गई। मुझे बहुत पसंद टाई, टाई जब होती है तो बड़ा मजा आता है। टाई हो गई है ए और बी के दरमियान, और अब होगा आपसे एक सवाल नहीं, आई मीन मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो। बजर बजर ही है, नेगेटिव मार्किंग होगी अगर जवाब गलत दिया या इस तरह। मुझे बताइए हिटलर के बारे में जानते हैं? जी। हिटलर फ्रीडम फाइटर था जर्मनी का। हिटलर ने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन बताइए एक अहम तरीन गलती और बड़ी गलती जिसकी वजह से वो अपनी कौम को और खुद को ले डूबा, बता सकते हैं? उस गलती का ताल्लुक रशिया से, बताइए। ठीक है, नहीं आता। दूसरा जवाब, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नहरी निजाम दुनिया के किस दूसरे कंटेस्टेंट ए जर्मनी से। दुरुस्त जवाब। और जर्मनी में पाकिस्तान के नहरी निजाम को और उनके अपने नहरी निजाम को वहां के ऑडिटोरियम में लगाया भी गया है, दिखाने के लिए कि हमारा और आपका नहरी निजाम आपस में रिजेम्बलेंस रखता है, मुमासलत रखता है। जी अच्छा बताइए,
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किन्हें कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ऑप्शन ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंट्रीज हैं कुछ, या यूरोप की कंट्रीज हैं कुछ, या इनका बर्रे आजम रशिया है। जी, दोनों ने एक साथ बजाया है। सवाल चेंज कर लें। दोनों ने एक साथ बजाया, सवाल चेंज कर लेते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खुलफा, प्यारे खुलफा, नहीं सवाल क्या है मेरा? 4 खुलफा के नाम। ये सवाल नहीं है, आप बताइए क्या सवाल, आप बताइए। आप भी -10 खाएं जरा, बताएं, यही सवाल चाह रहे थे आप। चले, -10 नहीं देता, चेंज कर लेता हूँ। सवाल देखें, सुन लें, अब ये दोबारा नहीं मिलेगा नहीं, मौका। पहले तो जो बजाता है उसके -10 होते। चले, नहीं वो ठीक है, लेकिन मैंने आप बता दें सवाल। आपके भी होंगे, आप भी वही जवाब आप सवाल बता दें, चले -10 आप भी ले लें, इक्वल हो जाएंगे, फायदा। इसलिए बोल रहा हूँ, -10 लें या ना लें, बात वही रहेगी। 4 खुलफा का मैं बताता हूँ, नहीं। मतलब उनकी पूरी मुद्दत कितनी थी? 30 साल। ऐसा नहीं, ये सवाल है ही नहीं। ये सवाल ही नहीं है। ठीक है, चले, मेरा सवाल ये था कि 4 खुलफा को खिलाफत राशिदा अता हुई और यके बाद दीगरे आप खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए, और आप चारों के बाद खिलाफत किसके पास गई? नहीं, ये सवाल था, अब नहीं पूछ रहा मैं, आपने पूछा। बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, सिंध के पंजाब के मशहूर सूफी बुजुर्ग, जो सूफी शायरी भी बहुत जबरदस्त की है जिन्होंने, उनका नाम है हजरत गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी, मेरा सवाल क्या है? ए? आपने उनका मज़ार कहाँ? जी, बिल्कुल। मुल्तान में है उनका मज़ार। गलत जवाब दे दिया आपने, -10 नहीं, हो गए। पाकपतन। फिर गलत जवाब दिया आप दोनों ने, फिर आप -10 हो गए। फरीदुद्दीन जी, आप -10 हो चुके थे, आप -10 हो चुके हैं। गुलाम फरीद बोला है मैंने, हजरत गुलाम फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा फरीद नहीं कहा, हजरत ख्वाजा। मिठन शरीफ। दुरुस्त जवाब दे दिया इन्होंने, तो -10 से 10 पे आएंगे। जवाब तो इनका क्या करें, रिकवर करें इन्हें? नहीं तो सवाल तब्दील करते हैं। नहीं, सवाल तब्दील कर जिस तरह उसका चलें, पहले ठीक से है। ही हुआ था। भाई आपने भी गलत कंफ्यूजन जवाब दिया ना पहले। है आप लोगों के साथ हमें। मैं नहीं चाह रहा कि इस तरह का कोई मरहला आए कि आपके चलें, साथ दूसरा सख्ती सवाल। बराबर भी ज्यादती आप हो। दूसरा सवाल। अच्छा खेले ना आप, तो मैं चाह रहा हूँ दूसरा और आखिरी सवाल। चलें, दूसरा और आखिरी सवाल। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही जी, क्या सवाल है? निजामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ जी है? बिल्कुल यही सवाल है, बताइए जवाब। दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपकी। और इस तरह तो ये मेरा ख्याल बराबर हो गए, ऐसा ही है? बराबर हो, फिर बराबर हो गए, फिर बराबर हो चुके हैं। चलें भाई, फिर बराबर हो गए। आइए, सुपर ओवर। अच्छा, -10 हमने दोनों में नहीं दिए, इसलिए ये इक्वल हुए। -10 दोनों में नहीं दिए, इसलिए ये इक्वल हुए। पाकिस्तान के कौमी जानवर ए। मारखोर। दुरुस्त जवाब, और कंटेस्टेंट ए सेलेक्ट हो गए क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। मुबारक हो आपको, खेला बहुत अच्छा आपने भी, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नाज़रीन किराम, दीजिएगा जरा इजाजत, छोटे से वक्फे के बाद होती है आपसे मुलाकात बज़्म कुरान में मुस्तनद उलमाए किराम के साथ। है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।